अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस एक डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है। इट इज सराउंडेड बाय अ डबल मेम्ब्रेन, one called is the outer membrane and the other is called is the inner membrane. So it is a double membrane bounded organelle. This nucleus is also referred as the information center of the cell. Information center for the reason nucleus houses the genetic material, and this genetic material is in the form of the DNA molecule. This DNA molecule stores information in the form of the genetic code. These DNA molecules store information in the form of genetic code. Genetic code मतलब ये हुआ कि न्यूक्लियस में मौजूद डीएनए से एक प्रोसेस जिसको ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू इस डीएनए से आरएनए बन जाता है। डीएनए से आरएनए बन जाता है और फिर इस आरएनए मॉलिक्यूल से ट्रांसलेशन के थ्रू, ट्रांसलेशन इस प्रोसेस के थ्रू इस डीएनए से आरएनए बना, ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से फिर ट्रांसलेशन के थ्रू प्रोटीन्स बनते हैं। यही प्रोटीन्स सेल के स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स भी बना सकते हैं और यही प्रोटीन्स फंक्शनल एंजाइम्स भी बना सकते हैं। ठीक है, एंजाइम्स दे आर इम्पोर्टेंट फॉर द मेटाबॉलिज्म, और स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स वो किसी सेल का स्ट्रक्चर बना सकते हैं। वो किसी ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जांपल अगर हम लें तो मसल्स दे आर प्रोटीनिशियस इन नेचर। मसल्स प्रोटीन्स होते हैं और मसल्स लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। तो न्यूक्लियस को इंफॉर्मेशन सेंटर ऑफ द सेल भी कहा जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ द न्यूक्लियस, organisms are classified into two major groups. The one called is the prokaryotes. एक को prokaryotes कहते हैं। Prokaryotes means before the nucleus. Pro means before, and karyon, that is the nucleus. Before the nucleus, they have no nucleus. न्यूक्लियस इज एब्सेंट। नाउ अगर हम ये कहते हैं कि न्यूक्लियस डीएनए को हाउस करता है तो प्रोकैरियोट्स में तो न्यूक्लियस एब्सेंट है। देन इन प्रोकैरियोट्स द डीएनए मॉलिक्यूल इज प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। डीएनए इज प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म, and this part of the cytoplasm where the DNA reside is called is the nucleoid region. Nucleoid region. The second major category of the organisms or cells that bears the nucleus is the eukaryotes. Eu means true and karyon means nucleus. तो वो सेल या वो ऑर्गेनिज्म जिनके सेल्स में न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, they are referred as the eukaryotes. They have the nucleus. इन ऑर्गेनिजम्स के सेल में या इन सेल्स में न्यूक्लियस मौजूद होता है। तो ऑकरेंस क्या है? यूकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस मौजूद है और प्रोकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस एब्सेंट है। Some eukaryotic cells also they lack the nucleus
they do not have the nucleus. For example, the mature RBCs, when the RBCs are immature, they have the nucleus, but the mature red blood corpuscles or red blood cells, इनमें nucleus absent होता है. For the reason, क्योंकि most of the RBC from inside are occupied by some special proteins for the transport of carbon dioxide and oxygen called hemoglobin. तो इस hemoglobin की वजह से mature RBCs में nucleus absent होता है. The number of the nuclei per cell varies from organism to organism. For example, some cells have only one nuclei. Most of the cells have only one nuclei, and those having only one nucleus are referred as mononucleate. जिन सेल्स में सिर्फ एक ही न्यूक्लियस होता है उनको मोनोन्यूक्लिएट कहते हैं. Most of the animal cells and most of the plant cells, most of the animal and plant cells, they are mononucleate or monokaryotic. They have only one nuclei per cell. Some other cells, they have two nuclei per cell. There are present two nucleus per cell. The most common, for example, एक unicellular microscopic organism consider होता है जिसको paramecium कहते हैं, Paramecium caudatum. This paramecium has two nuclei. The one that is larger in size is called as the macronucleus, and the other that is smaller in size is called as the micronucleus. And this micronucleus has role in reproduction, और जो macronucleus है इसका मेन रोल क्या होता है, इसके अदर cellular activities हैं. So those having two nuclei are called as the binucleate cells. Binucleate cells. Some other cells that have many nuclei, that is number third. Some cells have single, some cells have two nuclei, and some other cells they have three nuclei. Two nuclei में हमने एग्जाम्पल क्या पढ़ा, पैरामीशियम कॉडेटम. ये एक यूनिसेलुलर प्रोटेस्ट है, ठीक है. तो थर्ड कैटेगरी है that are having many nuclei. तो many nuclei में से मतलब जिसमें एक सेल में बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, मोर देन टू, उनको मल्टी न्यूक्लिएट कहते हैं. मल्टी न्यूक्लिएट सेल. मिसाल के तौर पे देखिए, मोनोन्यूक्लिएट प्लांट या एनिमल, ये एक सेल है और ये इसमें एक न्यूक्लियस है, तो मोनोन्यूक्लिएट हुआ. बाई न्यूक्लिएट में देखिए दो न्यूक्लियाई मौजूद हैं. मल्टी न्यूक्लिएट ये एक सेल होगा और इस सेल में मोर देन टू न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं. अब देखिए, इस सेल की फॉर्मेशन के बेसिस पे मल्टी न्यूक्लिएट सेल्स के दो टाइप्स हैं. वो दो टाइप्स सिनोसाइटिक और सेंसाइशियल, ठीक है. अगर फॉर एग्जांपल इस मल्टी न्यूक्लिएट सेल की फॉर्मेशन कुछ इस तरह हो कि ये एक सेल है विद अ सिंगल न्यूक्लियस, और इस सेल में दिस सेल अंडरगोज मल्टीपल न्यूक्लियर डिवीजन्स, इसमें बहुत सारी न्यूक्लियर डिवीजन्स होती हैं, लेकिन साइटोप्लाज्म डिवाइड ना हो,
न्यूक्लियस डिवाइड हो लेकिन साइटोप्लाज्म डिवाइड ना हो, then we will get a single mass of cytoplasm with too many nuclei, and such type of the cell is referred as सिनोसाइटिक। इस तरह सेल को सिनोसाइटिक सेल कहते हैं। इसकी हम एक एग्जांपल लेते हैं। फंजाई में एक ग्रुप है जिसको ज़ाइगोमाइकोटा कहते हैं। ज़ाइगोमाइकोटा आल्सो रेफर्ड इज ज़ाइगोमाइसीट्स। तो इनकी जो हाइफी है, इनकी जो माइसीलियम है, जो हाइफी है, वो सिनोसाइटिक होती है, वो मल्टी न्यूक्लिएट होती है, क्योंकि उसमें सेप्टा एब्सेंट होते हैं। और जब सेप्टा एब्सेंट होंगे तो एक ही मास ऑफ साइटोप्लाज्म में बहुत सारे न्यूक्लियाई होते हैं। इस तरह को हम एसेप्टेट मल्टी न्यूक्लिएट कहते हैं। देखिए, ट्रांसवर्स वॉल एब्सेंट है तो एसेप्टेट, और मल्टीपल न्यूक्लियाई मौजूद हैं तो एसेप्टेट सिनोसाइटिक कहते हैं। जो सेकेंड टाइप है उसकी फॉर्मेशन कुछ इस तरह हो सकती है कि फॉर एग्जांपल वी हैव a number of cells. In the given example, for example, we have 1, 2, 3, 4 and 5 cells. और ये तमाम सेल्स आपस में एग्रीगेट हो जाते हैं। इनका जो साइटोप्लाज्म है ये आपस में मिल जाता है। दिस इज कॉल्ड इज द प्लाज्मोगेमी, द यूनियन ऑफ द साइटोप्लाज्म। दिस इज कॉल्ड इज द प्लाज्मोगेमी, यूनियन ऑफ साइटोप्लाज्म हुआ, एंड दस we get a mass of the cell with 5 nuclei। 5 nuclei क्यों है? क्योंकि ये एक मास ऑफ साइटोप्लाज्म जो है ये 5 सेल्स की फ्यूजन से बना है, तो यहाँ पे फ्यूजन हो रही है। सच टाइप ऑफ सेल इज कॉल्ड इज द सेंसेशियल, या इसको हम सेंसाइशियम भी कहते हैं। तो मल्टी न्यूक्लिएट सेल्स सेंसेशियल या सिनोसाइटिक हो सकते हैं। न्यूक्लियस स्ट्रक्चर, तो न्यूक्लियस में हमें डिफरेंट स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स मिलते हैं, एंड दीज स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स इंक्लूड द आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर कॉल्ड इज द न्यूक्लियर एनवलप, एंड इनसाइड द एनवलप इज द fluid that is called as the nucleoplasm or the karyoplasm. So structure, the first component of the nucleus, that is the surrounding envelope. तो जिस तरह इस लेक्चर के आगाज़ में हमने पढ़ा कि न्यूक्लियस इज अ डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली, it is a double membrane bonded organelle. The nuclear envelope is composed of two membranes. The one called is the outer membrane and the other is called is the inner membrane. ये दो membranes हैं। Diagrammatically, for example, these are the two membranes. ये दोनों membranes ये एक दूसरे के साथ connected होते हैं, लेकिन इन दोनों membranes के दरमियान space भी होता है। तो किस तरह स्पेस होगा, ये देखें, ये आउटर और इनर मेम्ब्रेन आपस में कनेक्टेड हैं, लिविंग पोर बिटवीन द टू मेम्ब्रेन्स। आउटर और इनर आपस में कनेक्टेड हैं। इन आउटर और इनर मेम्ब्रेन के दरमियान स्पेसेस भी मौजूद हैं। और दूसरी बात कि इस न्यूक्लियर एनवलप में कुछ पोर्स मौजूद हैं। इन पोर्स का रोल ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस है, टू एंड फ्रो मूवमेंट ऑफ द सब्सटेंसेस। फॉर एग्जांपल, इस न्यूक्लियस को जो न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे वो इन न्यूक्लियर पोर्स के थ्रू मिलते हैं, या फ्रॉम इनसाइड द न्यूक्लियस अगर मैसेंजर आरएनए लीव करता है तो वो भी इन न्यूक्लियर पोर्स के थ्रू लीव करता है। ये आउटर मेम्ब्रेन में OM लिखता हूँ आउटर मेम्ब्रेन को, ठीक है, आउटर
मेम्ब्रेन, बिल्कुल इसी तरह इनर मेम्ब्रेन, और इन दोनों आउटर और इनर मेम्ब्रेन से न्यूक्लियर इनवलप बनेगा। ये इनर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है। इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के दरमियान ये स्पेस भी मौजूद है, ठीक है। बट दीज टू मेम्ब्रेन्स आर इंटरकनेक्टेड। इसके अलावा इसी न्यूक्लियर इनवलप में कुछ पोर्स मौजूद हैं। इन पोर्स को न्यूक्लियर पोर्स कहते हैं, न्यूक्लियर पोर्स कहते हैं। ये न्यूक्लियर पोर्स हैं, मेम्ब्रेन्स के दरमियान जो स्मॉल ओपनिंग्स बन रही हैं, ये न्यूक्लियर पोर्स कहलाई जाती हैं। देखें, इनसाइड द न्यूक्लियस डीएनए इज ट्रांसक्राइब्ड इनटू द आरएनए। डीएनए से आरएनए बनता है, फिर आरएनए से जब प्रोटीन्स बनते हैं, आरएनए से जब प्रोटीन्स बनते हैं तो ये प्रोसेस साइटोप्लाज्म में मौजूद राइबोसोम्स या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में मौजूद राइबोसोम्स में होता है। तो इस पर्पस के लिए इस मैसेंजर आरएनए ने इस न्यूक्लियस से बाहर जाना होगा, और ये मैसेंजर आरएनए किस तरह बाहर जाएगा? ये इन न्यूक्लियर पोर्स के थ्रू बाहर जाता है। बिल्कुल इसी तरह इनसाइड द न्यूक्लियस एक और स्ट्रक्चर मौजूद है जिसको न्यूक्लियोलस कहते हैं। न्यूक्लियोलस में राइबोसोम्स की जो सब यूनिट्स है उनकी फॉर्मेशन होती है। तो ये राइबोसोमल सब यूनिट्स भी इसी न्यूक्लियर पोर्स के थ्रू बाहर जाते हैं। mRNA leaves through the nucleopores as well as ribosomal units, they also leaves through these nuclear pores. तो nuclear pores का रोल क्या हुआ? That is the transport. The third component inside the nucleus is the cytoplasm like fluid called as the nucleoplasm. Nucleoplasm is also called as the कैरियोप्लाज्म। इसको कैरियोप्लाज्म भी कहते हैं। तो ये न्यूक्लियर इनवलप के इनसाइड जो फ्लूइड होगा, जिस तरह सेल के इनसाइड साइटोप्लाज्म होता है, ये न्यूक्लियोप्लाज्म कहलाया जाता है। ये न्यूक्लियोप्लाज्म है। Another important component inside the nucleoplasm is the genetic material. As previously we have discussed that a nucleus is referred as the information center of the cell. It stores information in the form of the genetic material, this is DNA. So कैरियोप्लाज्म houses the DNA, and this DNA is present in combination with some proteins. These proteins are called as the histones. और जब DNA और हिस्टोन प्रोटीन्स कंबाइन हो जाती हैं तो दे फॉर्म सम स्पेशल स्ट्रक्चर्स कॉल्ड इज द क्रोमोसोम। ठीक है, DNA ये नेगेटिवली चार्ज है, हिस्टोन्स ये पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन्स हैं, क्योंकि इसमें बेसिक अमीनो एसिड्स ज़्यादा होती हैं तो ये पॉजिटिवली चार्ज हैं। DNA इसमें फास्फोरिक एसिड है, वो नेगेटिवली चार्ज है। दोनों में अट्रैक्शन होती है और इससे क्रोमोसोम्स बन जाते हैं। दीज क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इनसाइड द सेल इन सम थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, जिनको क्रोमेटन कहते हैं, क्रोमेटन मटीरियल कहते हैं। नाउ another important component of the nucleus is the number 5 is the non-membrane bounded structure called is the nucleolus. अब देखें, यहाँ इस न्यूक्लियोप्लाज्म में क्रोमेटन जो है ये मौजूद है, इसको क्रोमेटन कहते हैं। ये असल में DNA है, क्रोमेटन। तो inside the nucleus, in the nucleoplasm, we have a non-membrane bounded structure called is the nucleolus, जिसका अपना कोई मेम्ब्रेन नहीं है, जिसका अपना कोई मेम्ब्रेन
नहीं है, that is non-membrane bounded, and this structure is called as the nucleolus. तो यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर है जिसका इनर पार्ट फेब्राइल है और आउटर पार्ट जो है वो ग्रेन्यूलर है. दिस डेंस structure present inside the nucleus is called as the nucleolus. ये जो dense structure है, इस dense structure को nucleolus कहते हैं. nucleolus ये वो structure है जिसमें राइबोसोमल सब यूनिट्स की फॉर्मेशन होती है. तो न्यूक्लियोलस के स्ट्रक्चर को मैग्नीफाई करते हैं. देखें, न्यूक्लियोलस का जो इनर पार्ट होता है वो फेब्राइल होता है. उसमें कुछ फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स होती हैं, एंड दीज आर एक्चुअली द राइबोसोमल डीएनए. इसी राइबोसोमल डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू राइबोसोमल आरएनए बनेगा. राइबोसोमल आरएनए बनता है और इस फेब्राइल पार्ट के सराउंडिंग में कुछ ग्रेन्यूलर स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं. These are actually the precursors of the ribosomes. ये एक्चुअली क्या हैं? प्रिकर्सर्स ऑफ राइबोसोम्स हैं. ये प्रोटीन्स होती हैं. ये प्रोटीन्स होती हैं. जब यही प्रोटीन्स और आरएनए दोनों कंबाइन हो जाते हैं तो दे फॉर्म द राइबोसोमल यूनिट्स. दे फॉर्म द राइबोसोमल यूनिट्स. अब देखें, राइबोसोमल यूनिट्स की कंपोजिशन क्या है? प्रोटीन्स और राइबोसोमल आरएनए. 10 राइबोसोम्स को राइबो, दैट इज़ द राइबोसोमल न्यूक्लियो, क्योंकि आरएनए जो है ये न्यूक्लिक एसिड है. राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन, क्योंकि इसमें प्रोटीन्स भी हैं, एंड पार्टिकल्स. तो राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल्स. नाउ व्हाट इज़ द रोल ऑफ द न्यूक्लियस? न्यूक्लियस का रोल क्या होगा? तो रोल ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं इसी लेक्चर में. नंबर 1, जिस तरह हमने पढ़ा शुरू में कि इट हाउसेस द जेनेटिक मटीरियल, तो हेरिडिटरी मटीरियल इज लोकेटेड इनसाइड द न्यूक्लियस. हेरिडिटरी मटीरियल को ये हाउस करता है. नंबर 2, इनसाइड द न्यूक्लियस राइबोसोमल सब यूनिट्स की फॉर्मेशन होती है. राइबोसोमल यूनिट्स की सिंथेसिस होती है इनसाइड द न्यूक्लियस. द थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन, दैट इज़ द जीन एक्सप्रेशन. तो जीन एक्सप्रेशन का सबसे पहला स्टेप, जिसमें डीएनए से आरएनए बनता है, ये सबसे पहला स्टेप है. और आरएनए से प्रोटीन्स का बनना, ये इसका दूसरा स्टेप है. ठीक है. तो डीएनए से आरएनए की फॉर्मेशन, ये भी न्यूक्लियस के इनसाइड होता है. डीएनए से आरएनए की फॉर्मेशन को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं. ये प्रोसेस क्या कहलाया जाता है? ट्रांसक्रिप्शन. तो ट्रांसक्रिप्शन जो है ये भी न्यूक्लियस के इनसाइड होता है. एक और इम्पोर्टेंट फंक्शन न्यूक्लियस का, जब भी सेल डिवाइड होता है तो डिवाइड होने से पहले सेल अपने जेनेटिक मटेरियल को कॉपी करता है, डीएनए को कॉपी करता है, क्रोमोसोम्स को कॉपी करता है. और ये जो कॉपिंग प्रोसेस है, जिसको डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन, ये प्रोसेस भी इनसाइड द न्यूक्लियस होता है. और इस प्रोसेस में डीएनए अपनी एक कॉपी बनाता है. तो आज हमने न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा कि ये एक डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है. जिन सेल्स में न्यूक्लियस होता है वो यूकेरियोट्स कहलाए जाते हैं. जिसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है वो प्रोकैरियोट्स कहलाए जाते हैं. नंबर ऑफ न्यूक्लियाई पर सेल हमने ये डिस्कस किया कि एक न्यूक्लियस भी हो सकता है, 2 न्यूक्लियाई भी हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं. बिल्कुल इसी तरह न्यूक्लियोलस की जो नंबर है, किसी एक न्यूक्लियस के इनसाइड न्यूक्लियोलस की नंबर जो है ये भी 1 to many हो सकती है.
Some cell will have only one nucleolus inside the nucleus, and some nuclei they will have more than one nucleolus. इस न्यूक्लियस की नंबर के हवाले से हमने ये पढ़ा कि मोनोन्यूक्लिएट, बाईन्यूक्लिएट और मल्टी न्यूक्लिएट। मल्टी न्यूक्लिएट में हमने फिर दो टाइप्स डिस्कस किए, सेंसेशियल और सिनोसेटिक। स्ट्रक्चर में हमने ये पढ़ा कि सराउंडिंग न्यूक्लियर इन्वेलप है, इन्वेलप के अलावा न्यूक्लियर पोर्स के अलावा न्यूक्लियोप्लाज्म, क्रोमेटन मटीरियल और न्यूक्लियोलस।